Jai Hind everyone. Today we have to be discussed another topic that is servlet in the web technology and the KCS 602, and I am the Anil Kumar, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department in Ajay Kumar Garg Engineering College. Okay, so we have to be discussed here what is the servlet, what is CGI. Before servlet we are using the CGI. So what is the main reason ki we are not be using the CGI and we are using the servlet? Third one is the differentiate between servlet and the CGI, and next one is the servlet life cycle and what are the cookies and their types. So before we start here, in the core Java we are when talk about there are the two part. One is the J2SC, second one is the J2EE. J2SC means ki Java 2 standard edition, means ki we have to be discussed here, that is core Java. Here if we talk about J2EE, that is the Java 2 enterprise editions, we are using here servlet, GSP and something. So here we have to be discussed about what is the servlet, and in the next lecture we have to be defined if we are using the servlet and the why we are using the GSP. When we talk about the core Java, so we have to be include here Java Beans. And here when we use the J2EE, we are using the EJB, that is the enterprise Java Beans. So today here we have to be discussed only what is the servlet and why we use the servlet. Okay, so servlet, what is a? It is used to create the web applications. It is used to create the web application, or in another way we have to be says that it is used to enhance the functionality of the web browser. It is used to enhance the functionality of the web browser. So it is resides at the server side and generate the dynamic web pages. Means if we have to be wants to create the dynamic web pages, so we are using the servlet. This servlet is robust and that is the scalable. Scalable, we have to be discussed already in the Java part what is the means of the robust and what is the means of the scalable. Both are the part of the Java language. Before servlet, as we have to be talk, before the servlet we are using the CGI. CGI means the common gateway interface. So what is a CGI? It is a scripting language that was common as a server-side programming language. Means CGI is also used as a server-side programming language. And there was many disadvantages of this technology for CGI. It has some disadvantage of the CGI. That's why we are using the servlet. Or we can say that the disadvantages of CGI is reduced in the servlet, so that we are using the servlet. And we have to be discussed what is CGI, what are the advantage and disadvantage of CGI, and what are the advantage of servlet in the next slide. There are, when we are using the servlet, there are many interface and many classes. Basically, when we talk about the servlet, its servlet has the some API. It has the some API, and these API can be divided into the two parts, some interfaces and some classes. And when we talk about both of these, so it will be throws and some exceptions. So these API, we can say that this API is a combination of the interfaces and the servlet, and the classes. So in the servlet, it has 7 interface and 3 classes and 2 type of the exceptions. We have to be discussed in the next slide. Okay, so when we have to be, so that it has many interfaces and the classes that has the servlet API, which is used in the servlet, such as some of them is the one is servlet interface, generic servlet classes, HTTP servlet, server request and server response and etc. Okay, what is servlet? Servlet करता क्या है कि it is a technology, as we have to be, it is used to create the web applications. We have to use the servlet to use the create web application, or we can be used to create the dynamic content. So it has an API that provide the many interface and the many classes, including the documents. Servlet is an interface that must be implemented for create the servlet. Means when we are using the servlet, तो servlet जिसका S कैपिटल है, it is an interface. तो जब भी हम servlet को यूज करेंगे, वो हमको इसको implement करना पड़ेगा. That is an interface. तो interface को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीवर्ड, that is the implement.
Servlet is a class that extend the capability of the servlet and respond to the incoming request. तो it can respond to the any request. ये काम कैसे करता है कि जैसे ही सबसे पहले क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई भी एक रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर को, ओके ये इमेज उल्टा हो गया, सर्वर को किया, सर्वर हमेशा वो क्या करता है, उसके एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद वो वहां पे उसका रेस्पॉन्स वापस क्लाइंट को यहाँ पे सेंड करता है. तो सर्वलेट इज ए वर्क करता है कैसे, एज ए वेब कंपोनेंट दैट इज डेवलप इन द सर्वर टू क्रिएट द डायनेमिक वेब पेजेस. Now we have to be define what is the CGI. Here we have to be defined before the servlet when we have to be created. तो when we have to be use the CGI, जैसे ही एक रिक्वेस्ट आती थी सर्वर साइड पे, it will be created response. ओके तो मल्टीपल क्लाइंट्स आएगी, मल्टीपल वहां पे रेस्पॉन्स जाएगा, हर के लिए क्या क्रिएट करेगा दैट. तो सो दैट इट इज हैवी ऑन द सर्वर साइड. So CGI is actually external application that is written of any programming language like in C and the C++. Here we are using the Java and this is written in the C and the C++. And it is responsible for processing client request and generate their dynamic contents. अभी जो बताया कि ये हमेशा क्या यूज होता है, रिक्वेस्ट जाएगी और उस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में वो क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और जो मेरा रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, दैट इज द डायनेमिक. CGI applications, when a client make a request access to the dynamic pages, the web server perform the following operations. कि जब भी एक रिक्वेस्ट जाएगी उसके रेस्पॉन्स से पहले वो क्या करेगा, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. What is the first one? It first locates the request of the web pages. Means that is it required the CGI application using the URL. जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या करेगा, उसका URL के साथ जनरेट करेगा. Second one, it create a new process to the service to the client request. हर एक के लिए क्या किया, एक प्रोसेस क्रिएट कर देगा कि जैसे ही एक रिक्वेस्ट गया कि मैं यहाँ पे बोलूँ क्लाइंट 1, so उसको मैं डिनोट कर देता क्लाइंट 1. क्लाइंट 1 ने जैसे ही एक रिक्वेस्ट किया, इट विल बी सेंड टू द सर्वर, तो इट विल बी क्रिएट ए प्रोसेस फॉर दैट. अगेन सेकंड क्लाइंट send a request, another it will be create a process. Means if we have the n number of client, so it will be create the n number of the process, which is very difficult to handle the client request and the process. Okay, it invoke the CGI application written in the process and pass the request information to the applications. तो उसके बाद जैसे प्रोसेस क्रिएट कर देता है उसके बाद यहाँ पे मुझे उसके रेस्पॉन्स को सेंड करेगा. It collect the response from the CGI application and it destroy the process, prepare the HTTP response and send to the client. कि जैसे ही वो यहाँ पे इसको प्रोसेस को करता है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस उसका आउटपुट क्लाइंट के पास सेंड करता है, तो ये हमेशा क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय द प्रोसेस एंड रिपीट द HTTP रिक्वेस्ट. तो हाउ इट विल बी वर्क, इन CGI server has to create and destroy the process of the every request. It is approachable, is applicable for handling the few clients, but if the number of client is the increase, the workload on the server increase as so. It means कि if workload is increased, तो it will be taken the time to process the request. अभी जो यहाँ पे डिफाइन किया कि जितने भी अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मिनिमम है, तो it will be every client request, it will be create a process, so it will be executed. But if number of client is increased, so it is difficult to handle number of the clients request and the number of the process. So when it will be the large number of the client, so it will be take the times. क्लाइंट के पास है, क्लाइंट है, रिक्वेस्ट आया और रिक्वेस्ट मेरा वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज HTTP रिक्वेस्ट. HTTP क्यों होगा, क्योंकि वी आर यूजिंग द ब्राउजर, सर्वर साइड एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो एवरी रिक्वेस्ट किस में होगा, दैट इज द HTTP, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास है, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट क्या किया, CGI एप्लीकेशंस को किया, CGI एप्लीकेशन ने यहाँ पे उसके एक रेस्पॉन्स के साथ प्रोसेस को क्रिएट किया और इस प्रोसेस को एंडिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, क्लाइंट को वापस आउटपुट मिला, एक रेस्पॉन्स वापस मिल गया, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द HTTP. और जब भी ये सर्वर से CGI के पास जाएगा तो ईच रिक्वेस्ट विल क्रिएट ए न्यू प्रोसेस. एवरी रिक्वेस्ट के लिए वो क्या करेगा, न्यू प्रोसेस को वहां पे क्रिएट करेगा, सो दैट इफ
it has the minimum number of the client or minimum number of the requests, then CGI can be work easily with the CGI. But if the number of the request or number of the client request is increased, so it is very difficult to handle this number of the request plus number of the process, so that it will be generate the response few letters, means it will time is increased, so that we are using the sublet. What are the disadvantages? अभी जो डिस्कस किया, जितने भी मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास जाएगा, वो सीजीआई के लिए क्रिएट करेगा, मींस यहाँ पे मेरा प्रोसेसर के पास क्या होगा, लोड ज्यादा होगा। इस प्रोसेसर के पास यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट भी है C1, C2, C3, और मेरा यहाँ पे हर एक के साथ क्या है, प्रोसेस भी है। मींस प्रोसेस लोड इज इंक्रीज, इट विल बी टेक द टाइम। सेकेंड वन, if the number of client is required increase, so it will be take the more time to sending the response. For each request it start a process and the web server is limited to the process. And next here, what is, we are using the Java sublet, we are using the sublet, and sublet is a part of the Java and it use platform dependent language, that is the वो किस में लिखा है, या तो C में, C++ या फिर PAR। एडवांटेजेस ऑफ द सबलेट, सबलेट से यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी एक रिक्वेस्ट आया, क्लाइंट की एक रिक्वेस्ट आया, इसने यहाँ पे इसको प्रोसेस करने के लिए जनरेट किया, जैसे ही ये वापस मिला तो यहाँ पे ये न्यू प्रोसेस नहीं, सेकंड क्लाइंट यहाँ पे अगर आता है तो वो भी क्या करता है, इसी को स्पेस को यूज करता है, वो यहाँ पे हर किसी एक रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस को क्रिएट नहीं करता है। तो दैट इज मीन्स कि मेरा प्रोसेसर लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोसेसर लोड डिक्रीज होगा, मीन्स कि जब भी मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा तो इन कंपैरिजन टू सीजीआई इट विल बी लेस टाइम। ओके, तो ये चीज है। फर्स्ट वन इज द बेटर परफॉर्मेंस, और बेटर परफॉर्मेंस क्या होगी कि मेरा यहाँ पे टाइम किसी भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए, प्रोसेस के रेस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, इट हैज द लेस टाइम बिकॉज इट क्रिएट ए थ्रेड फॉर द ईच रिक्वेस्ट। अभी इसको डिस्कस करेंगे, जितने भी सबलेट के अंदर हम बात करते हैं तो जैसे ही एक रिक्वेस्ट गया तो वो क्या क्रिएट करता है, एक थ्रेड। मीन्स थ्रेड क्या है, मेरा एक लिटिल प्रोग्राम से जो एग्जीक्यूट करता है, जैसे वो मेन प्रोग्राम इसकी मेमोरी को यूज करता है, मीन्स वो वेब सर्वर को यूज करता है, प्रोसेस किया, उसका आउटपुट वापस मिला, अगेन रिक्वेस्ट आएगी तो अगेन जो थ्रेड क्रिएट होगी वो भी मेरा फिर यही इस वेब सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट होगी, वो अलग से अपना यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को क्रिएट नहीं करेगा। ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं इन जावा, दैट इज द पोर्टेबल। बिकॉज क्यों पोर्टेबल होगा, क्योंकि ये किस में लिखा है, C++ एंड द जावा। जब हम इसको यूज करते हैं तो सर्वलेट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द जावा। J2EE रोबस्ट है, मींस JVM मैनेज द सर्वलेट सो दैट वी डू नॉट वरी अबाउट द मेमोरी लीक या गार्बेज कलेक्शन एंड ETC। तो ये सारा काम कौन करता है, दैट इज द JVM। तो दैट्स व्हाई सर्वलेट इज आल्सो द रोबस्ट एंड द सिक्योर बिकॉज इट यूज द जावा लैंग्वेज। तो वी कैन से दैट जो भी हमारे एडवांटेजेस हैं सर्वलेट के, जो भी हमारे एडवांटेजेस हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वही हमारे एडवांटेजेस किसके होंगे, दैट इज द सर्वलेट। तो दीज आर द few one, number one better performance, second one portability, third one is the robust, and last one is the secure. What is the difference between the sublet and the CGI? इन्हीं दोनों को अगर डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन क्या कह रहा है, सबलेट क्या है, पोर्टेबल है एंड द एफिशिएंट है, जबकि CGI मेरा पोर्टेबल नहीं है। इन द सेकंड, इन द सबलेट शेयरिंग डेटा इज पॉसिबल। यहाँ पे जो भी हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, डेटा जो भी शेयरिंग होगा वो पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या है, प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, सॉरी एक रिक्वेस्ट आया उसके लिए अलग प्रोसेस, दूसरा रिक्वेस्ट आया उसके लिए अनदर प्रोसेस, तीसरा रिक्वेस्ट आया उसके लिए अनदर प्रोसेस। मींस इन द CGI शेयरिंग डेटा इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, सबलेट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर। सबलेट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर। तो मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबलेट मेरा क्या करता है, कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया तो ये मेरा यहाँ पे क्या है, जिसको मैं वेब सर्वर बोल देता हूँ, कि जिसके अंदर क्या होगा, सबलेट JSP, तो ये डायरेक्टली कॉल करेगा, वापस रेस्पॉन्स इसके पास आएगा और ये यहाँ पे किसको दे देगा, मुझे क्लाइंट्स को दे देगा। तो सबलेट directly communicate with the web server, but in the CGI it cannot be direct communicate with the
वेब सर्वर। CGI मेरा कभी भी डायरेक्टली वेब सर्वर के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट वन, सर्वलेट इज लेस expensive than the comparison to CGI. Here CGI is more expensive. And main last, servlet can handle the cookies. That is the main part. What are the cookies? We have to servlet handle the cookies. Here cookies is a small tiny programs. When we are talking about the web browser, so it will be generate the cookies. But here in the CGI, it cannot be handle the cookies. These are the basic difference between the servlet and the JSP. So here we have to define the some basic term that are used in the servlet terminology. When we are talking about the website, so there are the two type of the pages, that is the static or that is the dynamic. Means it is a collection of related web pages that may contain the text, image, audio and video etc. So these are the pages are the static and the dynamic. As we have to be discussed here, that is the HTTP. So it can be handled to communicate the data used to establish communication between the client and the server side. Or means hypertext transfer protocol HTTP is used to exchange the data between the client and the server. कि जब भी हम ब्राउजर के ऊपर बात करते हैं डेटा को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू द क्लाइंट, तो दैट will be generated in the form of the HTTP. Next one is the HTTP request. So it is a request that is sent by the client to the web server that contain all sorts of the potentially interesting information. कि जब भी एक रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द HTTP रिक्वेस्ट. सेम इसी तरह में जैसे ही एक वेब सर्वर एक प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और आउटपुट जनरेट करेगा, वो मेरा क्या होगा, दैट इज द HTTP रेस्पॉन्स. नेक्स्ट वन इज द get versus post. When we create a form or we have to be send a request, so there are the two methods that are used. One is the get, second one is the post. When we send a request to the web server, then the get method is called, and then when the web server is send a request to the client or to the computer, then the post method is the request. Next one is the container. It is used in the Java for dynamically generate the web pages on the server side. कि जब भी हम सर्वर साइड की बात करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे काम किया था कि ये मेरा क्या था कि जब बात किया दैट इज ये किसकी तरह मेरा काम कर रहा है, एक कंटेनर की. और जिसका यहाँ पे काम क्या होगा कि जितने भी जनरेट करने हैं मुझे वेब पेजेस ऑन द सर्वर साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कंटेनर. जब सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर में दो चीजें आती है, वन इज द वेब and next is the application. So these two are used to manage the network resources. Okay, जब हम इन दोनों की बात करेंगे, these two are the used to manage the server resources. And next one is the content type. It is HTTP header that provide the description about what you are sending to the browser. So these are the some basic terms when we are using about the servlet. So it will be the commons. When we are create the websites, means we have to be create the static or the dynamic page. All the information is sent to the client to the server or server to the client, that is in the form of the HTTP. When a request is sent, so we call the HTTP request. When response is received, so we call to the HTTP response. Or for these request and HTTP request and HTTP response, we have to be use two method. One is get, second one is the post, and container and the content type. So these are the some basic terms we are used in the servlet terminology. As we have to be discussed here, when the what are the servlet API, so there are the two type of the packages used. One is the Java X.Servlet package. Also, what is a package? A package contains some interfaces and the some classes that are used by the servlet container. कि जो भी यहाँ पे यूज किया कि जब बात कर रहे हैं कि ये मेरा जो सर्वलेट कंटेनर है, जब भी हम इसको यूज करेंगे इट हैज सम API. ओके, तो हियर देयर आर द टू पैकेज. वन इज द Java X.Servlet and that is the Java X.Servlet.HTTP. So it also has the some interface and the some classes that are responsible to handle the client request. Now that is the main key how the servlet is work, or we can say that the what is the life cycle of the servlet. तो अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन की बात करूं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्वलेट को लोड करना है. मींस मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्वलेट को इनिशियलाइज करना है.
सेकेंड वन जैसे वो इनिशियलाइज्ड हो जाएगा मुझे उसको एक अनदर स्टेट में भेजना है कि जहां पे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, मींस मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको एक सर्विस मेथड प्रोवाइड करना है। और नेक्स्ट क्या होगा कि मुझे उसको क्या करना है, जैसे ही एक रिक्वेस्ट आया उसको प्रोसेस किया, रेस्पॉन्स उसको वापस मिला, तो मुझे उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरे पास 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले क्या है कि मुझे उसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे, इन इट मेथड का यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू बी लोड ए सर्वलेट। जैसे ही लोड कर लेते हैं मुझे उसको क्या करना है, सर्विस मेथड प्रोवाइड करना है। मींस सर्विस मेथड का मतलब है कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सी रिक्वेस्ट है और मुझे क्या चीजें वहां पे करना है। थर्ड वन, जैसे ही यार रिक्वेस्ट हो गया मुझे क्या करना है, उस सर्वलेट को क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ओके तो इन्हीं 3 चीजों को थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए, जहां मैंने लिखा कि सर्वलेट को इनिशियलाइज करना है, तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिफाइन किया। अभी जो डिस्कस किया कि मींस इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि मुझे उसके ऊपर इनिट मेथड यूज करना है, या किसी भी सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे वहां पे किसको यूज करना है, दैट इज द इनिट। तो उसी को सिंपली करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि लोड द सर्वलेट क्लासेस। क्योंकि जब भी हम सर्वलेट को यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे किसी न किसी एक पैकेज को यूज करना पड़ेगा, या तो javax.servlet या फिर javax.servlet.http. When we are using these package, it is a combination of the interface and the classes. So that here we have to be use a servlet class. Clear? Second one, create the instance of the servlet. Then we have to be apply the init method. जैसे ही init method we have to be apply the init method means we have to be initialize the servlet. Then we have to be use the service method, and third one we are using the destroy method. Okay, so here there are the 2 things when we are using. So for initialization we are using the service method. Second one, init method. Second one, when we have to be process the request, तो we are use call किसको किया मैंने, service method. और when we are using the service method, इसके पास 2 चीजें होगी, that is the request और that is the response. अब डिपेंड होता है कि अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है सपोज javax.servlet.http, तो मींस मैंने वहां पे कौन से पैकेज को यूज किया है, http वाले को यूज किया है। तो जो भी मेरी सर्वलेट की रिक्वेस्ट होगी वो मेरा यहाँ पे कौन सी फॉर्म का होगा, दैट इज http, और एक इंटरप्ट उसकी रिक्वेस्ट को करेंगे, दैट इज सर्वलेट रिक्वेस्ट। और मैं उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम क्या दिया, REQ। सेम इसी तरह जब सर्वलेट रिक्वेस्ट होगी तो उसी के साथ मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक रेस्पॉन्स भी होगा, और वो रेस्पॉन्स भी क्या होगा, HTTP फॉर्म। और इसको भी मैंने उसका क्या रेफरेंस क्रिएट कर दिया, RES। तो विद इन द ब्रैकेट्स वी हैव टू बी, व्हेन वी कॉल द सर्विस मेथड वी गिव द इनपुट एंड द आउटपुट। और इनपुट मेरा कौन सा होगा कि अगर फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे अगर यूज किया सर्वलेट वाले पैकेज को, तो वी हैव टू बी डिक्लेयर द सर्वलेट रिक्वेस्ट, एक रेस्पॉन्स क्रिएट किया, दैट इज द रेफरेंस REQ। सेम इसी तरह क्या होगा, सर्वलेट रेस्पॉन्स। और अगर हमने HTTP वाले पैकेज को यूज किया है तो वी हैव टू बी डिफाइन द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट and the HTTP servlet response. Or when we are using this method, service method, it will also throw an exception. तो जब भी वो यहाँ पे थ्रो करेगा मींस वो एक्सेप्शन कौन सी होगी, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज थ्रोज। और एक्सेप्शन कहाँ से आएगी, या तो इनपुट की होगी या फिर आउटपुट की होगी। मींस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, थ्रोज करेगा एक एक्सेप्शन, दैट इज द IO एक्सेप्शन। तो इसी को मैं यहाँ पे अगर बोल सकता हूं कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो ये मेरा क्या है कि सर्विस मेथड को कॉल करने का सिंटैक्स। ये मेरा क्या है, सर्विस मेथड को कॉल करने का सिंटैक्स। सिंपली याद करने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस मेथड यूज किया, अंदर मुझे क्या चाहिए, इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए। तो इनपुट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज करूंगा या फिर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे, एंड वी हैव टू क्रिएट ए इंस्टेंस REQ। सेम इसी तरह रेस्पॉन्स का किया, इनपुट आउटपुट का है, और अगर कहीं भी आता है तो ये मेरा क्या कर सकता है, एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। विच टाइप ऑफ द एक्सेप्शन, वी आर टेकिंग ओनली 2 पैरामीटर्स, वन इज इनपुट, सेकंड वन इज द
आउटपुट, तो इट विल बी थ्रू एन IO एक्सेप्शन। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया, सर्वलेट क्लासेस को लोड किया, फिर उसका क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसके ऊपर सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स रह गया, फिर उसके ऊपर क्या किया, इनिट मेथड्स को यूज किया, देन सर्विस मेथड को यूज किया, और लास्ट में क्या किया, डेस्ट्रॉय मेथड को यूज किया। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट। Okay, when we are talking about create a servlet, so we can be used by the three types. Number one, by implement the servlet interface. In the next session, we have to be define the implementation part, how we can be create a servlet or we can be called to a servlet. Next one, by inheriting the generic servlet class. It is also a class, that is the generic servlet class. So we are using या तो सर्वलेट इंटरफेस को यूज करें, और सर्वलेट को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट, दैट इज इंटरफेस, दिस इज ए क्लास, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, या फिर अनदर क्लासेस को यूज करना पड़ेगा, दैट इज द HTTP सर्वलेट क्लास। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वलेट को किया, तो सर्वलेट को रन करने के लिए हमको यूज क्या करना पड़ेगा, दैट इज द टॉमकैट, एंड द टॉमकैट वी हैव टू बी डिफाइन द files, or we can be say that we have to be define the directory structure. So it will be the, what is the directory structure, it will be defined that where we put the different type of the files, कि मेरे पास सर्वलेट भी होगा, JSP भी होगा, अनदर फाइल से भी होगा, HTML भी होगा, तो उस फाइल्स को मुझे क्या करना है, तो जब भी मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो भी वेब ऐप इस फोल्डर्स के अंदर हमें वहाँ पे क्या है, एक वेब INF का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी क्या है, सारी की सारी क्लासेस फाइल्स है, जहां पे मुझे उसको यूज करना पड़ेगा। मींस सर्वलेट को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब मैंने एक डायरेक्टरी को स्ट्रक्चर कॉल कर दिया, अब मैं वहां पे क्रिएट क्या कर सकता हूं, एक सर्वलेट को क्रिएट कर सकता हूं। उस सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या है, या तो मैं इंप्लीमेंट करूं सर्वलेट इंटरफेस को, या फिर मैं किसको यूज करूं, जो अभी किया था जेनरिक क्लास को, या फिर HTTP सर्वलेट क्लास। इन तीनों में से मैं किसी को भी यूज कर सकता हूं। जब ये तीनों यूज होगा, उसी के बाद मैं वहां पे डू गेट या डू पोस्ट मेथड्स को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हैं, बट दीज टू आर द कॉमन, कि जब तक मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग नहीं करूंगा, तो ये दोनों मेथड्स वहां पे कॉल नहीं होगा। लास्ट वन, वी हैव टू बी कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो हम किसका यूज करते हैं, दैट इज द जार फाइल, एंड किसका यूज करते हैं, दैट इज द सर्वर। तो सर्वर पे यूज करना है तो वी आर यूजिंग द अपाचे टॉमकैट्स, या फिर हमको यूज करना है तो जार फाइल्स के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देयर आर द टू वेज वी हैव टू बी लोड द जार फाइल्स। तो जार फाइल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, वहां पे उस फाइल का क्लास पाथ वहां पे डिफाइन करना है। दूसरा क्या होगा, जितनी भी वो मेरी फाइल्स होंगी, जार फाइल, JRE, lib एक्सटेंशन, तो मुझे वो उनको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, पुट द जावा फाइल्स इन द एनी फोल्डर, कि फिर मुझे थर्ड वन पे क्या करना है, कि उसकी जावा फाइल्स को उस फोल्डर के अंदर पुट करना है, कंपाइल करना है जावा फाइल को, एंड पेज द जावा क्लास। मीन्स या तो मैं अपाचे टॉमकैट का यूज करूं, या फिर नॉर्मली जावा के थ्रू भी जार फाइल्स है, तो मैं उसके थ्रू भी यहाँ पे इस प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकता हूँ। Okay, so these are the basic what is the servlet and the cookies, when we have to be discussed in the next session, we have to be apply the implementation part. Okay.